बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you second year students? I hope you all are fine. Dear students, as you know we have completed all short questions of chapter number 14. So today we will solve numerical problems of this chapter. Numerical number 14.1. Find the value of magnetic field B that will cause a maximum force 7 into 10 raised to minus 3 Newton on 20.0 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere. So first of all write in data the given terms. First maximum force is given. F force is represented by F 7 into 10 raised by 3 Newton. Length is given 20 centimeter. So convert it into meter. Centi value is 10 raised by minus 2. So 10 raised by minus 20 divided by 100, it becomes 0.2 meter. While amount of current is 10 ampere. Required term is calculate magnetic field. As the formula of force F is equal to ILB sin alpha. Okay, from this formula we can calculate magnetic field B. For as it's given here for maximum force. Force will be maximum when angle alpha is 90. As sin 90 gives maximum value, while sin 0 gives 0 value. So that's why alpha is not given here, but we have concluded from this maximum word alpha should be 90 degree. So by using this formula F is equal to ILB sin alpha, alpha is 90 degree, we can easily calculate magnetic field B by putting remaining values force, current, L, sin 90. You can calculate magnetic field B, it's your work. Now calculate yourself. After calculating, match your answer with this given answer 3.5 into 10 raised to minus 3 Tesla. This is the value of magnetic field B. Question numerical number 2. How fast a proton move? प्रोटॉन मूव यानी इसका मतलब है हमने यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है. हाउ फास्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज बी वैल्यू ऑफ बी such that the magnetic force is equal to its weight. F is equal to W and we have to calculate speed. Okay, as we have learned force in case of a proton moving in a magnetic field, formula is F is equal to Q V cross B and Q will be sin theta. Theta is equal to 90 degree. F इज इक्वल टू क्यू वी बी. ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री याद रखना है. जो हम एंगल हमने यहाँ पे V और B का एंगल हमने डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वो क्या था 90 डिग्री था, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, राइट. सो दैट्स वाई इन दिस फोर्स द एंगल बिटवीन V एंड B इज़ 90 डिग्री. F इज इक्वल टू क्यू वी बी. ओके, तो यहाँ से हम V की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे. V इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा F ओवर क्यू बी. और दूसरी बात एक और है, यहाँ गिवन है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी F इज इक्वल टू W. ओके, सो F जो है इसकी जगह फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू क्यू वी बी सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. F इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg. सो इन नेक्स्ट स्टेप mg इज इक्वल टू क्यू वी बी. सो नाउ V is equal to mg over qv. So by putting values, mass of proton, ये आपने लर्न रखना है, ये गिवन नहीं होगा डाटा में, ये आपको जुबानी आना चाहिए. mass of proton, वैल्यू ऑफ g आपको पता हो 9.8 है. 9.8 आप जो है अभी तक तो पहले वैल्यू 10 भी पढ़ते थे, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या है आपकी 9.8. while value of k charge on proton 1.6 into 10 is 19. remember it. and magnetic field B, this value is given in data. So after calculation, the speed of proton you have calculated 4.09 into 10 raised to minus 5 meter per second. Question number 14.3. A velocity selector has a magnetic field of 0.3 Tesla. This is the value of magnetic field. If a perpendicular electric field, value of electric field is applied, what will be the speed of particle that will pass through the selector? First of all write given values. Magnetic field 0.30 Tesla, electric field is 10,000 volt per meter, and we have to calculate speed of particle V.
सिंपली आप इसका फार्मूला V इज इक्वल टू E और B भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट करें अपने आंसर को। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से आंसर आया है, उसके लिए फिर आपको फर्दर थोड़ी सी डिटेल में जाना होगा। अदरवाइज यू कैन ईजिली हैंडल दिस क्वेश्चन बाय V इज इक्वल टू E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। As we know, electric force is equal to QE and magnetic force is QV cross B, VB sin 90, FM is QBB. Magnetic force is equal to electric force. पार्टिकल सेलेक्टर मेथड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ इक्वल, दोनों इक्वल होती हैं। सो दैट्स वाई QE इज इक्वल टू QVB, Q कैंसिल आउट एंड फार्मूला टू कैलकुलेट V बिकम्स E ओवर B। ये सारी कैलकुलेशन करने की अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत नहीं है। अगर आपको ना याद हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन 3.3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ओके ऑफ द पार्टिकल through which it will pass through the selector. Numerical number 14.4, a coil of 0.1 meter into 0.1 meter लेंथ, देखिए लेंथ इंटू लेंथ एरिया बन गया ये ओके 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ एंड 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, कैरिंग अ करंट है I 1.0 मिली एम्पेयर, मिली वैल्यू 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स 200, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ करंट 1 मिली एम्पेयर 1 इंटू 10⁻³ बाय प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग वैल्यू 0.1 टेस्ला। सो टू फाइंड मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल। वो मैक्सिमम टॉर्क टर्निंग इफेक्ट फाइंड कीजिए जो उस कॉइल पे एक्ट कर रहा है, जो उस कॉइल को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। सो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टॉ इज इक्वल टू BINA cos अल्फा। सो बाय पुटिंग वैल्यूज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम का वर्ड है स्टेटमेंट के अंदर, तो मैक्सिमम टॉर्क तब हमें मिलता है जब कोस के साथ एंगल जो है वो 0 हो, एज cos 0 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है, और cos 90 0 वैल्यू देता है, तो दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। Value of B is given in data, I is given in data, N is given in data, and A is given. So by putting all these values after simple calculation, our required torque is 2 into 10⁻⁴ Newton meter. Okay. So this is the maximum torque acting on the coil. Numerical number 14.5, a power line, बिजली की तार है 10 मीटर high, this is the height, carries a current 200 ampere amount of current. Find the magnetic field of the wire at the ground. मैग्नेटिक ग्राउंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कीजिए कि वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट के पास होने की वजह से, तो वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाइट ऑफ पावर लाइन कितना ऊंचा है, H 10 मीटर, ठीक है, हमने ऐसे हाइट उसके लिए ओके। एज क्या है, ये भी डिस्टेंस है, हाइट है, लेंथ है, मीटर। इसको अगर हम आर के इक्वल सपोज कर लें कि हम आर के सपोजिशन में, तो ये विकट है 10 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं। फर्दर हम देखेंगे कि हमने इसको आर के इक्वल क्यों पुट कर दिया, ओके, ताकि हमें फार्मूले में यूज़ करना आसान लगे। करंट वैल्यू इज गिवन 200 एम्पियर, वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। तो उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ग्राउंड पर, वो हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट 2πr B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है, सो दैट्स वाई, एंड म्यू नॉट वैल्यू इज 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वाइल सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। सो बाई पुटिंग वैल्यूज, म्यू नॉट वैल्यू 2π इंटू 10⁻⁷, करंट गिवन 200 एम्पियर, 2π एज इट इज कॉन्स्टेंट, पाई वैल्यू 3.14 and R is equal to H 10 meter. So after calculation, the value of required magnetic field is 4 into 10⁻⁻6 Tesla. So learn this formula, then you have no need to learn this step. B is equal to म्यू नोट I over 2πr. But must remember what म्यू नोट is equal to 4π into 10⁻⁷. Okay, Weber per meter per ampere. This is important MCQ. What's the value of mu naught and what's the unit of mu naught? Now calculate the dimension of mu naught. So it's your home task.
फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बाय यूजिंग वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। अब आपने यहाँ पे वेबर तो नेम ऑफ साइंटिस्ट पर है, इसको देखना होगा कि इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा यूनिट यूज़ किया जा सकता है, फिर उसकी हेल्प से आप लोगों ने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव सॉल्व फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स, सो इट्स योर होम टास्क, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।